That's why बयानबाजी। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री जनरल व्लादिमीर पाद्रिनो ने आत्मसमर्पण से इनकार करते हुए अमेरिका के खिलाफ डटकर लड़ने का ऐलान किया है। पाद्रिनो ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि हम अमेरिका से जीत के लिए लड़ेंगे। Buenos días, pueblo heroico de Venezuela, soldados y soldadas de la patria, hijos e hijas de Bolívar. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero que en la madrugada de hoy, 3 de enero, el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta el momento, la barbarie de las fuerzas invasoras que han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira, llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate en urbanismos de población civil, para lo cual estamos ya levantando la información referente a heridos y muertos. Frente a este ataque ruin y cobarde que amenaza la paz y estabilidad de la región, elevamos la más contundente denuncia ante la comunidad internacional y todos los organismos multilaterales para que se condene al gobierno norteamericano por la flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La Venezuela libre, independiente y soberana rechaza con toda la fuerza de su historia libertaria la presencia de estas tropas extranjeras que solo han dejado a su paso muerte, dolor y destrucción. Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestro वेनेजुएला पर हुए अमेरिकी हमले को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर निशाना साधा है। पुतिन ने कहा है कि वे कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं मानते। उन्होंने जब चाहा यूगोस्लाविया, इराक, सीरिया और लीबिया पर हमला कर दिया। पुतिन ने अमेरिका पर कई देशों को केवल अपने निजी हितों के लिए बर्बाद करने का आरोप लगाया है। Югославию бомбили. Под каким предлогом? Что, санкции Совета Безопасности, что ли? Где Югославия, где США? Уничтожили страну. Да, там внутренний конфликт, там свои проблемы. Но кто дал право наносить удары по европейской столице? Никто. Просто так и решили. А сателлиты за ними бежали сзади, подтягивали. Вот и все международное право. А под каким предлогом вошли в Ирак? Разработка оружия массового уничтожения в Ираке. Зашли, страну разрушили, создали очаг международного терроризма, а потом выяснилось, что ошиблись. Потом сказали, нас разведка подвела. Ничего себе. Разрушили страну, разведка подвела. И все. И все объяснение. Оказывается, не было там никакого оружия массового поражения. Никто не готовил. Наоборот, когда-то было все, как положено, уничтожили. А в Сирию как зашли? Что, санкции Совета Безопасности? Нет. Что хотят, то и делают. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला ऑपरेशन पर चीन, रूस और ईरान के साथ संबंधों को लेकर स्पष्ट रुख अपनाया है। एक रिपोर्ट के सवाल पर ट्रंप ने कहा है कि जिन देशों को तेल चाहिए, अमेरिका उनसे तेल का बिजनेस करेगा और उन्हें वेनेजुएला का तेल बेचेगा। उन्होंने कहा है कि हम तेल के बिजनेस में हैं, हम उन्हें तेल बेचेंगे। Mr. President, China, Russia, and Iran have interests in Venezuela. How does this operation affect your relationships with them when it comes to the oil and drugs? Well, in terms of China and Russia, Russia when we get things straightened out. But in terms of other countries that want oil, we're in the oil business. We're going to sell it to them. We're not going to say we're not going to give it. न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वेनेजुएला में चल रहे हमलों और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने की कार्रवाई पर असहमति जताई है। ममदानी ने कहा है कि उन्होंने ट्रंप को फोन करके इस कदम का विरोध दर्ज कराया।
उन्होंने कहा कि मैंने प्रेसिडेंट से सीधे बात की और उन्होंने बताया कि मैं इस कार्रवाई से सहमत नहीं हूं। As well as other members of my team, I called the president and spoke with him directly to register my opposition to this act and to make clear that it was an opposition based on being opposed to a pursuit of regime change, to the violation of federal and international law, and a desire to see that be consistent each and every day. And what was his response to you in that conversation? I registered my opposition, I made it clear, and we left it at that. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को बहुत ही बड़ी घटना बताते हुए चिंता जताई है। उन्होंने कहा, आप रोज ऐसा नहीं देखते कि कोई देश दूसरे संप्रभु राष्ट्र में घुसकर राष्ट्रपति को पकड़ ले। थरूर ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पुराने तरीके से पालन न होने का जिक्र किया तथा कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम चल रहा है। Well, as you know, I'm here in Wayanad for a Congress Party meeting, far away from all the international news. But all I can say is that it is a momentous event. You don't see every day a country marching in and capturing the president of a sovereign nation, member state of the United Nations. I think on the actual incident, I would leave it to the government to express their views. But there is no doubt that there is, for some years now, international law and the UN Charter are not being observed in the old ways. And now we are seeing, in many, many ways, a sort of version of might is right prevailing in international affairs, which has very serious implications for all of us. And every country has to adjust its diplomacy accordingly. बीसीसीआई के कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के निर्देश पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और खिलाड़ियों पर धर्म, जाति या संप्रदाय के आधार पर सवाल उठाना गलत है। उन्होंने अपील की कि खेल को राजनीति या धार्मिक दृष्टिकोण से न जोड़ा जाए। सामने आया तो दोहरा मापदंड क्यों देखता है? देखिए ये और पहले भी मैं बहुत सारे चैनल पर बोल चुका हूँ, सेम बात जो हमारे आदरणीय उदित राज जी बोले हैं। देखिए मैंने भी कहा था कुछ चैनलों पर कि यदि शाहरुख खान मुस्लिम नहीं होते तो ये सवाल नहीं उठाए जाते। कभी कभी लोगों को लगता है, भारत देश के लोगों को, खासतौर पर हम लोगों को लगता है कि कुछ सवाल धर्म जाति को लेकर उठाए जाते हैं जो ठीक नहीं है। चलिए अच्छा हुआ कि हमारे शाहरुख खान जी ने उस खिलाड़ी को वापस कर दिया और वापस करके उन्होंने देश का रिस्पेक्ट किया है, आदर किया है, उन लोगों को भी आदर किया है जो लोग मानसिक रूप से जकड़े हुए हैं, जो लोग धर्म जाति को लेकर के हमेशा सवाल उठाते हैं। तो चलिए अच्छा बात है, मतलब इसके लिए हम शाहरुख खान जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि अच्छा किए, कम से कम वैसे लोगों को भी उन्होंने आदर किया जब उनका अगेंस्ट में लोग आवाज उठाने लगे। और सब खिलाड़ी को क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को क्या कहेंगे, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। बहुत सारे खिलाड़ी साउथ अफ्रीका से भी आ रहे हैं इंडिया में, मतलब आईपीएल में खेलने, उसके बारे में क्या कहिएगा। देखिए सरकार का जो नीति है ना, विदेश नीति, उसको ठीक करिए। अगर मुझसे पूछिएगा तो बांग्लादेश का खिलाड़ी, अभी तो कुछ दिन पहले बांग्लादेश का खिलाड़ी आकर के भारत इंडिया में लोगों ने खेला, पाकिस्तान का खिलाड़ी के साथ में भारत का मैच हुआ। तो हम ये कह रहे हैं कि वो उसके लिए बाकायदा क्रिकेट बोर्ड है और क्रिकेट बोर्ड के अनुसार वो निर्णय लिया गया होगा, उस खिलाड़ी का चयन किया गया होगा। तो देखिए वो तो मामला अब मतलब खत्म हो गया, जब वो रिटर्न हो गए, जब उसको लोगों ने छोड़ दिया तो वो तो मामला खत्म है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि इस प्रकार का सवाल हमारे भारत देश में, जहां सेकुलर का एक बहुत बड़ा भाग है, हमारा देश एक बहुत बड़ा लोकतंत्र का परिभाषा यहां से निकल के जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में जाति, धर्म, संप्रदाय को लेकर के इस प्रकार का सवाल खिलाड़ियों के ऊपर नहीं उठना चाहिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि ऐसी घटनाओं की भर्त्सना की जानी चाहिए। उन्होंने बांग्लादेश के समझदार लोगों से आगे आने की अपील की है। पड़ोसी राज्य में इस प्रकार की घटनाएं होना, वो मैं समझता हूं कि वो दुखद है। कट्टरपंथ किसी भी धर्म के लिए, समाज के लिए और देश के लिए उसके विनाश का कारण बनता है। और बांग्लादेश में जिस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, वो उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर सकता, उसकी सर्वत्र भर्त्सना है। और बांग्लादेश में लोगों को
जो वहां के समझदार लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। भारत के बारे में आप समाचार पत्रों से और सभी तरफ से आप जान रहे हो कि भारत का जो सरकार है, विदेश विभाग है, वो पैनी नजर रखे है और वो क्षण प्रतिक्षण के घटनाओं से अवगत है। अब विदेश नीति का बहुत सारा वर्णन करने का अधिकार दूसरे को नहीं होता, लेकिन भारत सक्षम है और भारत चिंतित है वहां के अल्पसंख्यकों की रक्षा के भाव से। एक ये भी बात कही जाती है सर, बांग्लादेश घबराया हुआ है क्योंकि बांग्लादेश नहीं चाहता कि T20 जो मैच हो रहा है वो भारत में हो, वो चाहता है भारत से शिफ्ट होकर श्रीलंका में हो जाए। बांग्लादेश बताया जा रहा है कि ऐसा प्रयास नहीं, भारत के लोग उस तरह हिंसावादी नहीं है। भारत के लोग अपने पड़ोसी का भी और अपने दुश्मन का भी सम्मान करना जानते हैं। बांग्लादेश तो अभी दुश्मन की श्रेणी में नहीं है, दुश्मन सा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वहां बहुत बड़े संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो भारत का जो सहयोग है उसको याद कर रहे हैं। ऐसे लोग भी वहां पे हैं। तो भारत में तो सभी की सुरक्षा का भाव है। दुनिया का कोई भी यहां आया है तो भारत ने उसको सुरक्षा दी है। इसी के साथ साथ देवेंद्र तृणमूल कांग्रेस सांसद साइनी घोष ने कहा है कि भाजपा अगर बिहार और पश्चिमी बंगाल को एक जैसा समझती है तो यह उनकी बड़ी भूल है। साइनी घोष ने कहा है कि बिहार के लोग नीतीश कुमार या एनडीए के साथ हो सकते हैं, लेकिन बंगाल में हमारी बिहारी भाई बहन की ममता बनर्जी के साथ है। देखिए, बिहार के साथ अगर आप पश्चिम बंगाल को कंफ्यूज कर ले तो वो आप ही के सेहत के लिए हानिकारक होगा। बिहार में जो बिहारी है वो शायद नीतीश जी या एनडीए के साथ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे बिहारी समुदाय के भाई बहन हैं, जो माताएं हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो युवा है, वो सब ममता बनर्जी के साथ है। और इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण हमको पहले भी मिला है। तो बीजेपी चाहे जो भी बोले, हम इतना ही बोलना चाहते हैं दैट द रिजल्ट्स आर गोइंग टू स्पीक फॉर इटसेल्फ। और ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल के लोग पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं और आगे जाके भी ममता बनर्जी को ही वो ये भार सौंपेंगी कि वो पश्चिम बंगाल का टेक केयर कर सके। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश पर भाजपा सांसद मेनका गांधी ने कड़ी आपत्ति जताई है। मेनका गांधी ने इसे पशु अधिकारों के खिलाफ फैसला बताते हुए कहा है कि इस तरह के आदेश इंसानियत और कानून दोनों के सिद्धांतों के विपरीत है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने आदेश पर पुनः विचार करने की मांग की। As you had rightly pointed, those who show hatred towards animals can't show compassion to human beings. So, we talk on that context. You see the incident of stray dog incident in Delhi and across India. No, the Supreme Court has created an atmosphere of hate across India. And I feel very sad because the Supreme Court is meant to be the last institution that we respect. And if they lose the respect of the people, we hurt ourselves. Therefore, what the judges have done is wrong. By simply dividing India into people that hate one species or love one species, they have done a disservice to India. The Animal Welfare Act is a very good act, and it has protected animals and people for many years. They have not removed the act. They have simply said, you please work against the act. This is not correct. राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वन स्टेट वन इलेक्शन का ढोल पीटने वालों की वजह से राज्य की जनता को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव न होने के कारण केंद्र से मिलने वाले 3000 करोड़ रुपए की राशि अटक गई है, जिससे ग्रामीण विकास कार्य ठप पड़े हैं। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,
On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every